Greeting dear students. I hope all of you are fit and fine and following the COVID guidelines. So in the previous module we discussed about the nutrition in plants. In this module we will start the topic nutrition in animals. So during the introduction part of nutrition we discussed there are two modes of nutrition, autotrophic and the second one is heterotrophic. So autotrophic we have already discussed. In this module we will discuss about the nutrition in animal, the heterotrophic mode of nutrition, and more specifically the type of heterotrophic mode of nutrition, which is holozoic mode of nutrition. So generally the animals are generally classified into number of categories, but in broad categories they are classified into two. First is the lower organism or simple organism, for example the unicellular organisms like amoeba, paramecium, and multicellular organisms like us, human being, cat, dog, they are all under the category of higher organisms. So nutrition in animal, first we will discuss about the nutrition in case of amoeba. So most number of times this question has been asked in 3 marks. Explain the nutrition in amoeba. So in nutrition, in 1 mark they can ask like this: what category of nutrition take place in amoeba? You can write heterotrophic. More specifically, if you want to write holozoic mode of nutrition. So all of you are already aware about the different steps of holozoic mode of nutrition. First is ingestion, कि खाने को बॉडी के अंदर लेके जाना है. Second is digestion, mean complex substances जो हैं, complex food है, that will be converted into simple food. Third is after conversion of complex food into simple food, that will be absorbed into the system. Next is assimilation according to the requirement. The body will convert that absorbed food according to the requirement, कि जिस भी चीज में उसको बॉडी को चाहिए उस चीज में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. Next is the undigested food will be removed from the body, that is called digestion. So what I have written here, nutrition in case of amoeba. In 1 mark they can ask you how they do, how they absorb the food, or how nutrition takes place in case of amoeba, or what is the modification that takes place in amoeba for the digestion of food or for nutrition. That is why pseudopodia. So all of you are aware about the shape of amoeba. So amoeba shape is irregular, it is not fixed. Nucleus, and all of you are already aware that amoeba is a eukaryotic organism, and eukaryotic organism के अंदर क्या होता है, nucleus, the cytoplasm, and all other cell organelles which are responsible for the different life processes. Now the shape of amoeba is irregular. Let's assume this is the food. Generally it is aquatic organism, पानी में रहते हैं ये दोनों, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही. तो जब वो फूड के पास में आएगा, एज सुन एज इट रीच द फूड, फूड के पास आएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल डेवलप ए फॉल्स फीट अराउंड द फूड. दिस इज द मीनिंग ऑफ सूडोपोडिया. सूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फीट. तो वो क्या करेगा, दिस इज द न्यूक्लियस एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन. इंजेक्शन में क्या करना है, अमीबा को फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है, और वो कैसे लेके जाएगा, बाय डेवलपिंग सूडोपोडिया. तो वो फूड के अराउंड क्या डेवलप करेगा, सूडोपोडिया. तो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंजेक्शन इज गोइंग ऑन, अभी तक फूड अंदर गया नहीं है, ठीक है. धीरे धीरे फिर क्या होगा, आफ्टर दिस सूडोपोडिया पार्ट द फूड विल एंटर इनटू ए फूड वैक्यूल. कि वो यूं नहीं है कि पूरा बॉडी के अंदर ऐसा चला जाएगा, द साइटोप्लाज्म एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनल. सो आफ्टर डेवलपिंग द सूडोपोडिया, फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम दिस इज द फूड, वो उसके अराउंड पहले तो ऐसे फॉल्स फीट डेवलप करेगा, देन इट विल एनगल्फ, अंदर लेके जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, उसके चारों तरफ वो एक मेम्ब्रेन डेवलप करता है, एंड दैट मेम्ब्रेन विल कीप द फूड एंड इनटू द मेन पार्ट ऑफ द अमीबा, और साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाएगा. बट साइटोप्लाज्म के एकदम अंदर लिक्विड पोर्शन में नहीं जाएगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, देयर विल बी ए मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल. द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज ऑल द फर्स्ट स्टेप. कि फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, फूड के पास गया,
फूड के चारों तरफ फोल्स फीड डेवलप किए सूडोपोडिया, देन इट विल उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनाता है और बॉडी के अंदर लेके जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, दिस साइटोप्लाज्म विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स। उसके अंदर वो क्या रिलीज करता है, सर्टेन एंजाइम रिलीज करता है। दोज एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, जो किसी भी फूड की डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो सर्टेन केमिकल रिलीज करता है, सर्टेन एंजाइम रिलीज करता है इनटू द फूड वैक्यूम। अंदर जाने के बाद क्या होगा, जो एंजाइम अंदर गए हैं, जो केमिकल अंदर गए हैं, दैट विल कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, मीन उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन। आफ्टर कन्वर्जन इनटू सिंपल फूड, जो फूड सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, साइटोप्लाज्म के। थ्रू दिस सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस टर्म डिफ्यूजन। तो जब वो कॉम्प्लेक्स फूड वैक्यूल के अंदर टूट जाएगा सिंपल फूड के अंदर, तो सिंपल फूड में टूटने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा बाय द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी अमीबा, उसी के अकॉर्डिंग उसको वो क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज द इजेक्शन पार्ट। इन केस ऑफ इजेक्शन पार्ट, इन केस ऑफ इजेक्शन पार्ट में वो क्या करेगा, क्योंकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो तो कहाँ है, फूड वैक्यूल के अंदर ही है। तो जिस तरह से इसने फूड वैक्यूल को अपने अंदर लिया था, जब फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे या अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट विल रिमेन इनसाइड द फूड वैक्यूल। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो फूड वैक्यूल है उसको वो क्या करेगा, सिमिलर टू द इजेक्शन पार्ट, वो उस फूड वैक्यूल को क्या करेगा, बॉडी में से डिस्कार्ड कर देगा। दिस इज द न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, और वहां पे वो फट जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट जो है जनरली वो वाटर में चला जाएगा, बिकॉज दे आर द aquatic animal. So that's how nutrition in amoeba take place. So when you see your NCERT book, this diagram is also drawn, you can find this diagram also there and how it takes place. I hope the basic mechanism of how nutrition take place in amoeba is clear to everyone. Generally divided into 5 steps. First step is ingestion. कैसे वो फूड को अंदर लेके जाता है, बाय प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया, फोल्स फीड डेवलप करता है, फूड वैक्यूल मेम्ब्रेन से कवर करता है, अंदर लेके जाता है, अंदर ले जाने के बाद एंजाइम रिलीज करता है उसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, उनका क्या होता है, डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स से सिंगल में कन्वर्ट, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, देन इट विल ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। सिंपल फूड को क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बाय द सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, देन इट विल रिलीज दी जो वेस्ट प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वैक्यूल के अंदर ही डाल के रखता है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं आता और उसको बाहर क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। सेम स्लाइटली डिफरेंट इन केस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के केस में क्या होता है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म होता है एंड सर्टेन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, these certain hair like projections are called cilia। तो सीलिया भी उसी तरह से फूड के पास जाता है और एक सर्टेन स्पॉट्स होते हैं पैरामीशियम के ऊपर। सीलिया क्या करता है, सर्टेन, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ऑन आवर बॉडी, तो सिमिलर टू दिस, वो बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हमारे को। तो दिस सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस पैरामीशियम। तो वो फूड के पास में जाते हैं और उसको एक सर्टेन स्पॉट्स होते हैं पैरामीशियम के, और उसको अंदर एनगल्फ करते हैं। रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू दिस। So this is how nutrition in paramecium takes place. And one more term that can be asked in the exam, what is the specific name that is used for the nutrition in amoeba? Holozoic, heterotrophic, and synonym. Synonym is also called phagocytosis. तो phagocytosis में वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं किसको, फूड पार्टिकल को। That process is called phagocytosis। की जो इंजेक्शन है फूड का, यहाँ पे आएंगे वो सूडोपोडिया डेवलप करेंगे, देन फूड वैक्यूल और एंटर करेंगे। दिस इंजेक्शन इज आल्सो कॉल्ड phagocytosis and rest of the processes are, you are already aware, digestion, absorption, assimilation and injection. So this is about the nutrition in case of amoeba, paramecium और generally lower organism और unicellular organism। उनके केस में कभी भी पूछे
you can write the example of amoeba, but everything depend upon the mark distribution. If question is of 3 marks, then it is compulsory whether it is asked in the question or not. You have to explain everything about the amoeba by drawing this diagram. You can also refer your NCERT book for the diagram. Next is the higher organism. The detail of higher organism we will discuss in next few modules. For example, higher organism, human being, herbivorous, carnivorous, omnivorous. I hope all of you are aware about these terms. Herbivorous means which depend upon the plant for their nutrition, कि जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर. दोज आर कॉल्ड herbivorous. Second is carnivorous, which depend upon the, these are not the category of human beings. इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना. This is just for the example part. So carnivorous, which depend upon the meat or flesh. So meat eating animals जो होते हैं, they are generally called carnivorous, and the combination of these two, omnivorous. Omnivorous mean which depend upon both plant, which eat plant as well as meat. So those are generally called omnivorous. So detail of nutrition in human being we will discuss in next few modules. So this module was about the nutrition in case of lower organism, unicellular organism, simple animal, for example amoeba and paramecium. So I hope this nutrition in amoeba topic is clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you students.